everyone, my name is Shwani Tyagi, your teacher, and today we are going to understand coins together of Rajasthan. See, when we talk about coins, you have to understand that we are discussing about history, we are discussing about culture, about art, about political stability, how administration was, what basically those rulers were doing at that time, right? I'm sure in polity you have heard this word, this concept a lot of time. Golden age, है ना? बहुत बार सुना है ना? Golden age. कभी गुप्ता पीरियड में देखने को मिल जाता है, right? And during Ashoka period also. So what exactly this golden age is? So understand this properly when you're talking about history, when you're talking about art and culture, when you're talking about understanding political, you have to understand when we talk about this golden age, हमारे पास में अगर political stability है, right? उसके साथ साथ में हमारे पास economical stability है, right? So that's very obvious that we'll be focusing on what? We'll be focusing on art and culture, ठीक है? जिसमें we'll have language, जिसमें we'll have different forms, right? हमारे यहाँ पर अगर politically stability होती है, right? We have proper force also, we have proper military alliances also, administration is properly structured, right? And when we talk about economics, both of these, right, all these things are like together interlinked and dependent on each other. अगर यहाँ पर हमारे पास में दोनों चीजों में stability मिलेगी तो ये जो होगा हमेशा ही अपग्रेड होगा, right? So this is why we call eras, right, time golden age. Why? Because they are politically stable, economically they are rising up, right? And when we talk about art and culture, they are upgrading. Okay. Now, when we talk about coins, you have to understand that they tell us about political conditions, right? That who was ruling, right? So in this time, we are going to discuss about that how Rajputs were ruling, but still they were using Mughals coins, right? They were using names of Mughals, right? So we'll try to understand the reasons behind it. कि ऐसा क्यों करते थे वो कि ruling जब power हमारे पास में पूरी की पूरी किनकी है? If we have like power of Rajputs, right? Then why those people were using Mughals coins? ठीक है? उनके coins use करते थे, right? Then it tells about economic conditions also, right? हमारे coins ये बताते हैं that how stable economical wise that area, that region, that ruler was, right? After that religion, ठीक है? किस god को मानते हैं? We'll be understanding that how on coins we are using symbols of gods, ठीक है? उसके बाद में हम नाम उनका use करते हैं, right? So that will be understanding कि उस time पर अगर कोई शिवा की they are basically coming up with the symbol, so that person was is following that god, right? इसके साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर की सिंबल्स क्यों यूज होते थे, क्या यूज होते थे, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में, राइट? इफ यू आर यूजिंग हिंदी, इफ यू आर यूजिंग उर्दू, राइट, अलग अलग पर्शियन लैंग्वेजेस, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमेशा कॉइन्स जो है एक हिस्ट्री लेकर आता है, राइट? So while understanding coins, do not just remember, name of the region and the coin, right? Do not do this. When you are understanding coins, make sure that you're understanding the history behind it, the reasons behind it, the core behind it, right? And that's exactly what we'll be able to do. ठीक है? चलो अब देखो क्या है. हम जो स्टडी ऑफ कॉइन्स को उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है? अब जो अर्ली जो हमारे कॉइन्स थे उनको बोलते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स. क्यों बोलते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स? क्योंकि वहां पर जो हमारे पास कॉइन्स थे उनके पास में सिंबल्स होते थे, बल्कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, सिर्फ वो पंच होते थे, राइट? एज विल बी सीइंग फोटोज आल्सो कि या तो उन पर डॉट बना दी जाती थी, राइट, या फिर उन पर थोड़ा सा कुछ एक निशान होता था, राइट? सो दीज पंच मार्क्स वर देयर इन दैट कॉइन, और हर एक पंच मार्क का देयर वाज द रीजन बिहाइंड इट, देयर वाज द कोर रीजन बिहाइंड इट, राइट? So make sure that when you are understanding these things now, you are understanding the core behind it, the reason behind it, ठीक है? और उसके साथ साथ में हिस्ट्री हमेशा लेकर चलिए, right? Now after this, these coins are the one which basically helps us historians understand कि exactly जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, right, उनका रिटर्न रिकॉर्ड्स क्यों होता नहीं है ना? that written records is missing. So through these coins, through these evidences only, these historians try to understand कि exactly reasons क्या था उस टाइम पर, रूलिंग पावर कौन सी थी, right? और रूलिंग पावर क्या क्या आइडियोलॉजीज फॉलो करते थे. Through these coins we try to understand, ठीक है? Now let's move to our first coin, that is Muhammad Shahi coin, ठीक है? If we talk about his ruling power, he ruled from 1749. coins थे, right? So these coins were used before local Rajput coin system, ठीक है? तो कौन यूज करता था? इनको यूज करते थे मुगल्स, है ना? और फिर उसके बाद यही कॉइन्स किसने अडेप्ट करे? राजपूत ने अडेप्ट करे, राइट? एज आई वाज टेलिंग यू टू कि क्यों ऐसा होता था कि अगर हमारा रूलिंग पावर चेंज हो चुका है, राइट, देन व्हाई वाज इट कि राजपूत वही कॉइन सिस्टम यूज कर रहे थे, राइट? अब देखो, अगर इन कॉइन्स की बात करें तो पहला तो ये सिल्वर कॉइन्स थे, ठीक है? ये देखो सिल्वर कॉइन्स थे, ठीक है? यहाँ पे आपको पर्शियन इंस्क्रिप्चर्स मिलेंगे, ठीक है? पर्शियन लैंग्वेज को यूज होता था. पर्शियन का क्यों यूज होता था? पर्शियन वाज द लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? व्हिच वाज यूज्ड फॉर दीज थिंग्स, ठीक है? वो लिटरेचर में यूज होती थी, लोकल लैंग्वेज में यूज नहीं होती थी पर्शियन, ठीक है? अब आपको यहाँ पर दिखेंगे छोटे छोटे यहाँ पे डॉट्स दिखेंगे, है ना, ये वाले. सो लैंग्वेज वाज पर्शियन, राइट, एंड दीज स्मॉल स्मॉल डॉट्स वर देयर, राइट? सो
when we talk about these, right, so they were basically, the texts were written सिक्का मुबारक साहिब, किरान साहिब, मोहम्मद शाह बादशाह, right. So these things were telling कि कैसे मुगल्स जो थे were the one who were ruling at that time. मतलब रूलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल पावर थी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, हमारी इकोनॉमिक पावर थी, वो थी हमारी सारी की सारी राजपूत के पास में. बट व्हेन इट कम टू दिस सिंबल पावर, दैट सिंबॉलिक पावर किसके पास में थी? द सिंबॉलिक पावर वाज विद मुगल्स ओनली, एज दिस वाज द टाइम जब मुगल्स जो है उनका एरा डिक्लाइन हो रहा था, राइट. दिस वाज द टाइम व्हेन दे वर कमिंग इन द फेज ऑफ डिक्लाइनिंग. तो इस टाइम पर भी मुगल के पास में अथॉरिटी थी, राइट. तीसरा जो रीजन है हमारे पास में, द थर्ड रीजन इज कि जो हमारे ट्रेडर्स थे, राइट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे, एज दे वर लाइक नोन, मुगल्स वर नोन, राइट. तो इसीलिए वो जो हमारे कॉइन्स थे वो चेंज नहीं किए गए. क्यों चेंज नहीं किए? क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स है वो उसी कॉइन्स के हिसाब से चलते हैं, राइट. सो टू नॉट put an impact on that trading system, they did not change the coin, they did not change the Mughals name on the coin. ठीक है, तो this is the reason. हमेशा जो है when you like try to understand these symbols, when you try to understand these coins, make sure that you're understanding the reason, the history behind it, कि क्यों राजपूत ये coins use कर रहे थे. मुगल्स की डिक्लाइन होने के बाद भी जब हमें पता है राजपूत, मराठास, if these were basically were there, तो फिर symbolically हम मुगल की अथॉरिटी को क्यों मान रहे थे, राइट. तो ये कोइन जो थे मुगल के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल कनेक्टेड थे, राइट. हमारा राजपूत स्टेट बेसिकली एक्सेप्टेड मुगल अथॉरिटी सिंबॉलिकली, राइट. सो दे यूज मुगल एम्पायर्स, राइट, नेम ऑन कॉइन्स. मतलब ये क्या दिखाता है? दिस शोज अबाउट द पॉलिटिकल लॉयल्टी, right. It also basically tells us about the trade across the North India, as I told you कि मुगल्स जो था ऑलरेडी इम्पैक्ट डाल चुके थे अपना ट्रेडिंग में, राइट. तो उसी ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, उसी इम्पैक्ट को मेंटेन करने के लिए दे वर फॉलोइंग दिस थिंग ओवर हियर. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. अब इसके बाद में हमारे पास है आकाशाही कॉइन्स. ठीक है, राजस्थान रॉयल आइडेंटिटी के नाम से भी जाने जाते हैं, राइट. तो ये जो है हमारा मारवाल आखिराज के नाम से है, राइट. जैसे मैं रीजन के रूलर्स की बात कर रहे हैं, राइट. अगर इनकी बात करें तो पहले ये प्योर सिल्वर था, लेकिन आफ्टर लाइक लेटर व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंप्योरिटी वाज सीन इन सिल्वर. ठीक है, लेकिन जब हम इन कॉइन की बात करते हैं तो these coins were like of pure silver. ठीक है, तो this is how these coins were used to look like. ठीक है, ओके. आफ्टर दिस लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके साथ साथ में क्या हुआ था कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, राइट, उसके साथ साथ में जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर. लेटर हमें अलग अलग इंप्योरिटीज दिखाई दी. ओके, इसके साथ में क्योंकि प्योर सिल्वर था, ठीक है, लेकिन बाद में इंप्योरिटी आई. उसके साथ साथ में देयर इज वन मोर थिंग. इनके बाद में हमें देखने को मिला दैट वी हैड लाइक क्वीन विक्टोरिया ओवर हियर 1860 से. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश. ठीक है, तो एकदम से चेंज किसका मिला हमें? फ्रॉम हेयर टू वी, सो क्वीन विक्टोरिया ओवर हियर. ठीक है, so now Queen Victoria was here, so this means the time of Britishers came in. It means what? They were in governance, they were in ruling power, right. So जो हमारा राजपूत का जो हमारा क्लाइन था, राइट, जो हमारा मराठास का था, जो हमारा मुगल्स का था, राइट, जो हमारे इंडियन रूलर्स का था, that was declining, that was shifting to what? That was shifting to this Britishers time. ठीक है, तो मतलब जो है कि हमारा अगर चेंज हो रहा है टाइम, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू व्हाट? वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू दिस कॉइन्स कि कैसे जो हमारा सिंबॉलिक पावर था, राइट, दैट वाज शिफ्टेड टोटली एंड टोटली टू ब्रिटिशर्स, राइट. तो ब्रिटिश पावर जो है एक्सपेंड हो रहा था. क्वीन विक्टोरिया का जो सिंबल था दैट वाज बेसिकली शोइंग दिस, राइट. तो हर नेम बिगिंस अपीयरिंग ऑन कॉइन्स, राइट. तो हमारा जो राजस्थान प्राइसली स्टेट था उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम को बेसिकली अडेप्ट कर लिया, राइट. तो इसी कॉइन्स में हमें देखने को मिला कि राजपूत आइडेंटिटी से वी सो दैट मुगल इन्फ्लुएंस वाज देयर, और मुगल से हमारे क्या देखने को मिला? दिस ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वाज सीन. ठीक है, तो शिफ्ट देखने को मिला होगा फ्रॉम राजपूत टू मुगल एंड मुगल टू ब्रिटिश. ठीक है, तो ये शिफ्ट देखने को मिला थ्रू व्हाट? थ्रू दीस कॉइन्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है? कॉइन्स है बेसिकली आर टेलिंग अबाउट व्हाट? रिप्रेजेंटेशन, अबाउट द अथॉरिटी, अबाउट द पावर, अबाउट द इकोनॉमिकल चेंजेस, राइट. उसके साथ साथ में दैट हाउ मच इट वाज नीडेड टू हैव दिस सर्वाइवल पॉलिटिकली, हाउ मच इट वाज नीडेड, कि कैसे राजपूत वाज इन द फ्रंट. ठीक है, सारी रूलिंग पावर तो राजपूत के पास में, लेकिन सिंबॉलिक पावर किसके पास में थी? मुगल्स के पास में थी, राइट. थ्रू दिस वी अंडरस्टूड दिस. ठीक है, so Rajasthan rulers, they maintained what? They maintained local pride, right, but they had like adjusted with the bigger empires. Okay, I hope this is understood. So this is it for today. I'll be back with more coins and more history of Rajasthan, and what you have to do, you have to stay with me for Rajasthan